So welcome my dear class 7 NCRT students, and here we are with the new chapter, that is paper boats. Fine. I know that there are few chapters which has been skipped, but because this is a very interesting chapter, I thought to start with this, and then we will start with the other chapters of this section. Fine. This is the paper boat chapter from section 3. So let us start, and first of all welcome you all to the platform integration by English Dreamers. Fine. And we focus on improving English with the subject and subject with English. Fine. And I hope that you have been benefited through these video series, and if you are really benefited, please let me know. Okay, you can drop me a comment in the comment box, and you can share the video as much as you can to your classmates too. Fine. So come on, let us start with the reading of the chapter. But before starting the chapter, let us do these activities, right? Read the questions below. Share your answers with your classmates and the teacher. As every time there are few activities before we read the chapter, in the same way this time also there is some activity, and you have to discuss and share it with your classmates and your teacher. Fine. So what is the first question? That what comes to mind when you think about paper boats? This is the question. I know you are small enough, you are young enough, but somewhere or at the point of time you might have made paper boat, right? Without paper boats and without paper aeroplanes, our childhood is not complete, right? So I know, or and I expect that you might have at least once you might have made a paper boat, right? And few of the children, what they do, and even when I was younger, I used to make a paper boat, and I used to make it flow on the water stream when it rained, understand? And I used to watch that how long, how far the paper boat can go, understand? And it is very exciting thing, it is very interesting thing. Got my point? So here it is asked that what comes to mind when you think about paper boats. जब आप पेपर बोट्स के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? So for example, you may say that when I think about paper boat, uh, I think that my paper boat should what to say, like my paper boat should move far away and it should reach some destination. बहुत दूर तक मेरी पेपर बोट बहना चाहिए और कहीं किसी के पास जाना चाहिए या किसी के पास पहुंचना चाहिए. Yes or no? That kind of thinking we may have. फाइन. तो आपको यहाँ पर सोचना है कि अगर आप पेपर बोट के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आपके माइंड में आता है? Got my point? What do you think someone might hope for when they send a paper boat down a stream? यही क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है. पहले तो आपको अपने मन की बात बतानी है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि कोई दूसरा पर्सन जो है, कोई दूसरा इंसान, अगर वो पेपर बोट बनाता है और उस पेपर बोट को डाउन द स्ट्रीम, मतलब कि पानी के बहाव के साथ में उसे वो छोड़ देता है, तो फिर उसके दिमाग में, उसके मन में क्या आता होगा? ऑब्वियसली द सेम क्वेश्चन, ऑब्वियसली द सेम थिंग जो आपके माइंड में आ रहा है कि मेरी पेपर बोट कहाँ तक तैरेगी, या फिर क्या वो किसी के पास पहुंचेगी, किसी को मेरी पेपर बोट मिलेगी, अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ऑब्वियस एंड कॉमन क्वेश्चन जो आपके माइंड में या किसी के भी माइंड में आता है जब वो पेपर बोट बनाते हैं. Got it? Read the title of the poem Paper Boats and predict what the poem might be about. तो आपको पेपर बोट का टाइटल पढ़ने के बाद आपको ये सोचना है, आपके माइंड में आपको प्रेडिक्ट करना है, यानी कि आपको गेस करना है कि पोयम किस बारे में है. गॉट इट? सो नाउ व्हाट इज द सेकेंड एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू बिफोर we switch on to reading the poem? That is, read the given paragraph and match the highlighted words with their meanings given in the box below. आपको क्या करना है? जो highlighted words है उसको रिप्लेस करना है जो आपके हेल्प बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हैं उससे. गॉट इट?
So I love to play beside a running stream at a short distance from my grandparents' house. ठीक है, बोल रहा है कि चलो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज रिटन हियर. ठीक, तो इट इज सेइंग कि मुझे पसंद है खेलना कहाँ, रनिंग वाटर स्ट्रीम के बाजू में खेलना. जैसे यहाँ पर रनिंग वाटर स्ट्रीम जा रहा है और यहाँ पर वो बच्चे को खेलना पसंद है, यहाँ इसके आसपास में वो खेलना चाहता है एट शॉर्ट डिस्टेंस. और वो जो रनिंग स्ट्रीम है ना जहाँ पर वो खेल रहा है वो उसके घर के पास में ही है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस के पास में. आई लव टू सी इट स्किपिंग अलोंग टू जॉइन अ रिवर. ठीक है, वो उसे देखना बहुत पसंद करता है. गॉट इट, स्किपिंग अलोंग टू जॉइन अ रिवर. और इसको इस स्ट्रीम को बहते बहते उसको देखना पसंद है कि वो जाकर रिवर में मिल जा रही है. स्ट्रीम मतलब एक छोटी सी पानी की धार होती है जो कहीं कहीं से फ्लो होती है और फिर वो जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है. फाइन, so the writer loves to see that. On the river I can see boats with bulging sails moving swiftly. और रिवर में जाकर वहां पर वो जो राइटर है वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं बल्जिंग सेल्स. बल्जिंग सेल्स मतलब ना, ये देखिए ये जो दिस पार्ट ऑफ बोट है ना, ये जो बाहर निकला हुआ है, इस बाहर निकले हुए पार्ट को बोट के हम बल्जिंग पार्ट बोलते हैं. ठीक है, बल्जिंग मतलब कि बाहर निकला हुआ या उठा हुआ. ओके, सो बल्जिंग सेल्स, ये जो बल्जिंग पार्ट है इसका, इसके थ्रू ये जो बोट है इट इज फ्लोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. गॉट इट. तो बोल रहा है कि बल्जिंग सेल्स मूविंग स्विफ्टली. इसको वहां पर रिवर में वो देखता है कि ये जो बोट है वो स्विफ्टली एकदम मूव कर रही है. Got it? Some of them take the people from one shore to other while in some of them people can be seen. और किसी किसी जगह में क्या होता है कि कोई कोई सी जो बोट्स है वो इंसान को वन शोर यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे लेकर जाती है, और कुछ ऐसी होती है जिसमें इन सम ऑफ देम पीपल कैन बी, और किसी में लोग दिखाई पड़ते हैं. लैडिंग थिंग्स टू. ठीक है, तो किसी में जो बोट है वो लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे लेकर जा रही है, और किसी किसी बोट्स में वो देखते हैं कि लोग जो है वो थिंग्स को लोड कर रहे हैं. लैड मीन्स लोड होता है. ओके, तो थिंग्स को उसमें लोड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. आई कैन स्पेंड आवर्स वॉचिंग द बिजी रिवर एंड ड्रीमिंग अबाउट दैम. और मैं बहुत समय वहां पर खड़े होकर बिजी रिवर को देखते हुए उसके बारे में सोचते सोचते वहां पर मैं बहुत सारा समय बिता सकता हूँ. ठीक है, बरिंग माई हेड इन माई पिलो एट नाइट. और रात में है ना, रात में मैं जैसे लाइक इट हैपेंस ना कि कभी कभी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, सम फैंटेसी वी इमेजिन. तो फिर वो क्या होता है, वो फैंटेसी हम जब रात में सपने में जब सोते हैं या हम जब नींद में जाने वाले रहते हैं उसके पहले वो थॉट सारे हमारे माइंड में आते हैं. अंडरस्टैंड. तो जब हम अपना सिर पिलो पे रखकर जब रात में सोते हैं और सोचते हैं तो वो सारी जो ड्रीमिंग्स है, वो सारी जो फैंटेसीज है वो हमारे माइंड में ऑब्वियसली आती है. यस, चाहे हम बच्चे हैं चाहे हम बड़े हैं, है ना, तो हमको अपनी फैंटेसीज हमारे माइंड में आती है जब हम बेड में जाते हैं. सो दैट द राइटर इज सेइंग कि मैं बहुत घंटा इस बिजी रिवर के बारे में सोचते हुए रात में अपने पिलो में सर रखते हुए बिता सकता हूँ. गॉट इट. सो नाउ लेट अस गो थ्रू हियर कि यहाँ पर देखो रनिंग स्ट्रीम के लिए आपको क्या वर्ड रिप्लेस करना है, स्पीडली फ्लोइंग. रनिंग के लिए होता है स्पीडली फ्लोइंग यानी कि तेज धार में बह रही है. ओके, स्किपिंग. स्किपिंग के लिए वर्ड है बाउंसिंग. ओके, स्किप करना या फिर बाउंस करना, इस बोथ द थिंग्स आर सेम. ठीक है, यानी कि ऐसे लॉन्ग स्टेप्स ले लेकर वो आगे बढ़ना. गॉट इट. बल्जिंग आई हैव टोल्ड यू, जो निकला हुआ पोर्शन होता है उसको बल्ज बोलते हैं. एंड हियर द रिप्लेसमेंट ऑफ बल्जिंग इज स्वेलिंग. ओके, स्वेलिंग का मतलब भी ऐसा उठा हुआ होता है या फिर सूझा हुआ या निकला हुआ. गॉट इट. देन आफ्टर लैडिंग, लैडिंग इज नथिंग बट लोडिंग. एंड बरिंग, बरिंग मतलब कि दबा लेना. ठीक है, सो पुटिंग, सिर को रखना. बरिंग माई हेड इन पिलो या फिर पुटिंग माई हेड इन पिलो, सिर को अपने पिलो पे रखना. So I hope this activity is absolutely clear to you all now. And now let us start reading with the poem and then I'll explain you
the same. Fine. So let me start reading. Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shuli flowers from our garden and hope that these blossoms of the dawn will be carried safely to the land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the lading is their baskets full of dreams. This beautiful poem is written by a Nobel Prize winner, the first Nobel Prize winner of India, who is Guru Rabindranath Tagore. Okay, Guru Rabindranath Tagore had been awarded with a Nobel Prize for his the series of his poetries Gitanjali. Okay, to your knowledge, let me tell you this thing. Okay, that Rabindranath Tagore is a Nobel Prize holder and he's the first Indian to receive Nobel Prize, and the Nobel Prize he received for his poem series, the book of his poems, which was named Gitanjali. Fine. So this is one of the poem, and he has written many poems in Hindi, English, and even in Bengali language. Okay. So here we will now go through the understanding of this poem. Fine. Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. व्हाट राइटर इज सेइंग कि मैं हर रोज, है ना, डे बाय डे यानी हर रोज मैं अपनी पेपर बोट्स को बहाता हूँ, फ्लोट कराता हूँ. कहाँ पर? वन बाय वन इन द रनिंग स्ट्रीम, जो पानी की धार बह रही है उसमें मैं अपनी बोट्स को तैराता हूँ. इन अ बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम्स ऑन देम एंड नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव. ठीक है ना, ब्लैक लेटर्स में वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं अपना नाम बोट के ऊपर. ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी है ना, यहाँ पर देर इज समथिंग रिटन ऑन द बोट. सो इन द सेम वे ब्लैक लेटर्स में वहां पर उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है और अपने विलेज का नाम लिखा हुआ है जहां पर वो रहते हैं. एंड ही होप, उनको होप है, उनको उम्मीद है कि कोई तो होगा एक स्ट्रेंज से लैंड में, है ना. ये जो नाव जो बहते बहते जहाँ आगे चलकर किसी एक अनजान जगह में पहुंचेगी, वहां पर कोई तो ऐसा होगा जो मेरी बोट को रिसीव करेगा और उसे वो फाइंड करे, वो जानेगा कि मैं कौन हूँ. क्यों? क्योंकि वो मेरी बोट को रिसीव करेगा तो वहां पर मेरा नाम और एड्रेस लिखा रहेगा. तो एक स्ट्रेंजर पर्सन को मेरा नाम और मेरा एड्रेस पता चलेगा कि इस नाव को किसने भेजी है. फाइन. आई होप दैट समवन इन द स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम. और वो बोट्स में क्या डालते हैं देखो, वो अपने बोट्स में, अपनी लिटिल बोट्स में शूली फ्लावर्स डालते हैं. शूली फ्लावर्स आर दिस काइंड ऑफ फ्लावर यू माइट हैव सीन. ये जो फ्लावर्स है स्पेशली नाइट में ब्लॉसम होते हैं. ठीक है, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत दूर दूर तक के जाती है. ओके, एंड दिस इज द वन ऑफ द स्पेशल फ्लावर ऑफ वेस्ट बंगाल विच इज ऑफर्ड टू गॉडेस दुर्गा इवन इन दुर्गा पूजा. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रेडिशनल फ्लावर ऑफ West Bengal, and because Rabindranath Tagore belongs to West Bengal, that's why he used the name of what to say, that flower which is widely used in West Bengal. ओके, तो श्यूली फ्लावर्स जो है वो उसको अपनी बोट्स को श्यूली फ्लावर से उन्होंने लोड किया है. किस उम्मीद से कि ये जो है ना फ्लावर, ये रात भर तो तैर तैर के जाएंगे, फिर ये जो मतलब जब वो स्ट्रेंजर के पास पहुंचेंगे ना, तो उस समय शाम के समय या फिर सुबह के समय, शाम के समय है ना, रात में वो कैरिड हो जाएंगे सेफली टू द लैंड इन द
नाइट, वो मतलब जब तक कि वो स्ट्रेंजर के पास पहुंचेंगे तब तक वो फ्लोट होते होते फिर वो एक समय पे जब वो स्ट्रेंजर को मिलेंगे तो वो बिल्कुल फ्रेश खिले हुए दिखेंगे। गॉट इट। और वो अपने पेपर बोट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, एंड लुक अप टू द स्काई। अब वो उन्होंने अपने पेपर बोट को तो लॉन्च कर दिया, और अब वो पेपर बोट को लॉन्च करने के बाद अब वो जब स्काई में देखते हैं राइटर, ओके, वो जब स्काई में देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि जो लिटिल क्लाउड्स है ना वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग सेट टू द क्लाउड सेटिंग द वाइट बल्जिंग सेल्स, यानी कि वो जो क्लाउड्स इस तरीके के हैं ना वो भी एक बोट का शेप राइटर को दिख रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो क्लाउड्स है ना दे आर ऑल्सो गेटिंग सेट, वो गेट सेट हो रहे हैं, किस लिए, वो भी अपनी सेल को स्टार्ट करने के लिए। गॉट इट, यानी कि वो आगे बढ़ने के लिए। आई नो not what my playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो स्काई में जो क्लाउड्स में मेरे प्लेमेट्स जो बैठे हुए हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी क्लाउडी जो बोट्स है, बल्जिंग बोट्स है, उसको क्या किया, उन्होंने सेट किया ताकि वो मेरी बोट्स के साथ में रेस कर सके। Got my point? Fine. So it is a very imaginary and very thoughtful poem। ठीक है, एक जो बच्चा या एक राइटर सोच सकता है कि वो कितना मतलब कि कितना इमेजिनरी हो सकता है, दैट काइंड ऑफ इमेजिनेशन डेप्थ, द इमेजिनेशन इन डेप्थ द पोएट इज ट्राइंग टू नरेट। ठीक है, तो बोलते हैं कि मैं जैसे ही बोट को अपनी फ्लोट कर देता हूँ और ऊपर स्काई पे देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वहां पर भी जो बल्जिंग क्लाउड्स है वो बोट का जो शेप ले लिए और वो भी स्टार्ट हो रहे हैं मेरी बोट के साथ में रेस करने के लिए। और जो ऊपर जो स्काई में मेरे प्लेमेट्स है ना उन्होंने उसे भेजा है मेरी बोट्स के साथ में रेस करने के लिए। व्हेन नाइट कम्स, और जब रात आती है ना, रात, अभी देखिए उन्होंने ये सारा काम तो करके आ गए, बट अब क्या हो रहा है कि वो जो उसका जो व्हाट टू से, जो उसकी जो थॉट्स है, उसकी जो वाइब्स है, दैट इज स्टिल मूविंग अराउंड ऑन हिज हेड। यस, तो राइटर जो है अभी भी वो सोच रहे हैं उसके बारे में। और जब रात हो जाती है तब वो क्या करते हैं, वो अपने सिर को, अपने फेस को एंड अपने आर्म्स के अंदर बरी कर लेते हैं, यानी अपने सिर को अपने आर्म्स के अंदर छुपा कर, और वो ड्रीम करते हैं, वो ड्रीम में भी या फिर नींद में भी, या नींद जमे जाने से पहले और नींद में भी, इवन ड्रीम में भी वो क्या सोचते हैं कि जो मेरी पेपर बोट है ना वो अभी भी फ्लोट कर रही है, और रात रात हो गई है और बहुत सारे स्टार्स स्काई में शाइन कर रहे हैं, और स्टिल माई बोट इज फ्लोइंग। ठीक है, और अभी भी इतनी मतलब सुंदर सी रात में मेरी बोट जो है वो अभी भी फ्लो कर रही है। गॉट माई पॉइंट? अंडर द मिडनाइट स्टार्स, फाइन। द फेरीज, और इतना ही नहीं ना, वो और भी क्या ड्रीम कर रहे हैं, देखो कि रात हो गई है, द स्टार्स आर शाइनिंग एंड अंडर द शाइनिंग स्टार हिज बोट इज सेलिंग। और तो और जो फेरीज ऑफ स्लीप्स है ना, यानी कि जो नींद की रानियां हैं, जो नींद की परियां हैं, जो छोटी छोटी नींद की परियां हैं, वो क्या कर रही हैं, वो नींद की परी जो है वो आकर इसमें बैठकर वो तैर रही है, सेल कर रही है इनकी बोट में। और उसमें उन्होंने क्या रखा हुआ है, इसमें क्या लोड किया हुआ है, बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, क्योंकि रात की फेरीज हैं तो वो क्या करेंगी, रात की जो फेरीज हैं वो सपने लेकर घूमेंगी, ठीक है, बोट्स में, तो बास्केट में सपने लेकर तैर रही हैं राइटर की बोट में। फाइन। So this was a completely imaginary, and as the name of the section suggests, dreams and discoveries, तो it is a kind of dream कि एक जो writer है he is pretending himself to be a child and he is making a paper boat and he has lots of dreams and fantasies about his paper boat। Got it? So I hope you understood the poem। इसमें as such कुछ moral या फिर it's not कोई understanding नहीं है, आपको जस्ट एक इमेजिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है कि हाउ पोएट कैन इमेजिन हिमसेल्फ टू बी अ चाइल्ड एंड ही इज इमेजिनिंग एवरीथिंग
fine and so beautiful things he is imagining. Okay, so I hope you have understood the chapter better, and that's all for now. And I hope you can go through now. You are able to solve all the question and answers and all the exercise according to the understanding of this chapter and this poem. That's all, my dear friends, and God bless you all.